السلام علیکم ناظرین، روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کوئی بندہ اذان سننے کے وقت اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، کہ اے اللہ اس دعوت تامہ کاملہ اور اس صلاۃ قائمہ و دائمہ کے رب، یعنی اے وہ اللہ جس کے لیے اور جس کے حکم سے یہ اذان اور یہ نماز ہے، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلہ کے خاص درجہ اور مرتبہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر سرفراز فرما جس کا تو نے ان کے لیے وعدہ فرمایا ہے، تو وہ بندہ قیامت کے دن میری شفاعت کا حقدار ہوگا۔ خبروں سے قبل نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں کی جانب۔ ٹرانسفارمر کی چوری میں ملوث بین ریاستی سارقین کو پولیس نے لیا تحویل میں۔ نظامباد سی پی دفتر میں میڈیا اجلاس سے سی پی سعید چیتنیا نے تفصیلات کا کیا انکشاف۔ مرکزی وزیر نتن گڈکری سے بی جے پی ایل پی قائد ایم ایل اے مہیشور ریڈی نے کی ملاقات۔ خصوصی ملاقات میں اٹالہ مودول ایم ایل اے راما راؤ پٹیل نے کی شرکت۔ بالکنڈہ ایم ایل اے پرشانت ریڈی نے منڈورا کے لیے منظور کیے گئے 35 کلیانہ لکشمی و شادی مبارک اسکیم سے متعلق فائز پر کیا دستخط۔ جکران پلی منڈل کے ترلی دیہات میں عہدے سے سبکدوشی کی تقریب میں رورل ایم ایل اے ڈاکٹر بھوپت ریڈی نے کی شرکت۔ عالمی یوم صحافت کے موقع پر ایم پی جے آفس پر تقریب کا اہتمام۔ شہر سے تعلق رکھنے والے صحافیوں کو پیش کی گئی تہنیت۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی طرف۔ عالمی یوم صحافت کے موقع پر ایم پی جے آفس پر تقریب کا اہتمام۔ شہر سے تعلق رکھنے والے صحافیوں کو پیش کی گئی تہنیت۔ آج بتاریخ 16 نومبر 2025 عالمی یوم صحافت کے موقع پر دفتر ایم پی جے واقع بودن روڈ پر محمد ظہیر الدین کی صدارت میں تقریب یوم صحافت کا اہتمام عمل میں لایا گیا، جس میں شہر نظام آباد سے تعلق رکھنے والے صحافی حضرات نعیم قمر صاحب، روشنی ٹی وی انچارج ایڈوکیٹ ذیشان رضوی اور نوجوان عمران جرنلسٹ کو گلپوشی و تہنیت پیش کی گئی اور ان کی صحافت خدمات کی ستائش کی گئی۔ اس موقع پر ذمہ داروں نے موجودہ دور میں مہمانوں نے صحافت کی ذمہ داری خدمات پر اپنے خیالات کا اظہار پیش کیا اور صحافت کی خدمات کی ستائش کرنے پر ایم پی جے کے ذمہ داروں سے اظہار تشکر کیا۔ تقریب میں آرگنائزر شیخ حسین صاحب، نائب صدر ایم پی جے جناب محمد معیز، جنرل سیکریٹری ایم پی جے ڈاکٹر سجاد احمد، ممبران رفیق، انور علی صاحب، اسلم چاوش، احسان صدیقی کے علاوہ سماجی خدمت گزار ریاض ملک صدیق و دیگر حضرات بھی شریک تھے۔ لیکن صحافی ذمہ داری کے ساتھ یہ کام انجام دیتے ہیں، تو آج کے پریس ڈے کے موقع پر جو بھی حضرات صحافی حضرات یہاں پہ موجود ہوئے ہیں، دل کی گہرائیوں سے ان کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہمت کو، ان کے حوصلے کو اور ترقی عطا فرمائے۔ نظام آباد ہمیشہ سے اردو کا مرکز رہا ہے اور یہاں پر جو صحافت ہوتی ہے کافی معیاری ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر جو بسنے والے لوگ ہیں وہ کافی معیار والے، اور آج کا یہ پروگرام میں اس طرح سے نسبت دوں گا کہ ہیرے کی پرکھ صرف جوہری کو، اور اقدام لیے کافی ایسا بول سکتے کہ چھوٹا ہے لیکن اثردار ہے۔
आवाम को भी चाहिए कि उर्दू सहाफ़त, बिलखुसूस उर्दू सहाफ़त न्यूज़पेपर हो या फिर आपके पास किसी ज़रिए से पहुंची हो, उसकी कदर करें, ताकि उर्दू आपकी ज़बान है, इसमें आपके मसाइल आते हैं और इसके ज़रिए आप अपनी आवाज़ दूर तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन उर्दू सहाफ़त अल्हम्दुलिल्लाह बदउनवानी से बचे हुए आती है। वज़ारत रियाज मलिक ने कहा हैदराबाद के पास सबसे ज़्यादा चैनल और अखबार यहाँ पे निकलते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि बेदाग सहाफ़त उर्दू अखबार से रहे इल्ला माशाअल्लाह, और किसी भी किस्म के ऊपर उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं, कोई क्रिमिनल केसेस नहीं, और कोई मतलब मामूलात की बात नहीं है, हलाल हराम की तमीज़ है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से कांग्रेस में मौजूद मुस्लिम क़यादत को नेक्सलाइट कहा जाना नाकाबिले बर्दाश्त, कांग्रेस कायद सैयद कैसर का बयान। कल बीजेपी ने जश्न मनाया दिल्ली में, और उस जश्न में हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी साहब ने खुले तौर पर आवाम के दरमियान में, मीडिया के दरमियान में तकरीर की, बयान किया, बात की, और उसमें उन्होंने हम मुसलमानों को नक्सलाइट कहा। यानी जो कांग्रेस में है वो नक्सलाइट है, यानी मुस्लिम माओवाद कांग्रेस, MMC कहा है। कैसा, मैं पूछता हूँ नरेंद्र भाई मोदी साहब आपसे, आप इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, एक प्राइम मिनिस्टर इतनी छोटी बात इस तरीके से मुसलमानों को नक्सलाइट कहे, एक देश का प्राइम मिनिस्टर, इतना बड़ा आदमी इस तरीके की घटिया हरकत करें, नरेंद्र भाई मोदी साहब आपको शोभा नहीं देता। जनता दल यूनाइटेड एनडीए की पार्टी है, एनडीए आपके साथ, एनडीए के साथ में बीजेपी के साथ में गठबंधन एनडीए है, उसके अंदर जेडीयू है, जेडीयू के अंदर भी परसेंटेज, जो कल परसों इलेक्शन हुआ है, रिजल्ट आया है, उसके अंदर भी एक मुसलमान जीता है जेडीयू की तरफ से। आपकी महाराष्ट्र की हुकूमत में मिनिस्टर है, वहाँ पर मुशर्रफ साहब वहाँ के मिनिस्टर है एनडीए के। आने वाले स्कूल गेम्स फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम इनेकाद अमल में लाए जाने वाले कौमी सतह के खेलों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने का ट्रैफिक एसीपी मस्तान अली ने किया इजहार। शहर निज़ामाबाद के सुभाष नगर में वाक़ स्पोर्ट्स अथॉरिटी स्विमिंग में मुनक़िदा इजहार तशक्कुर जलसे आम में ट्रैफिक एसीपी मस्तान अली ने शिरकत करते हुए कहा कि तलबा तालीम के साथ साथ खेलों में भी यकीनी तौर पर हिस्सा लें, क्योंकि खेलों से भी मुस्तक़बिल को ताबनाक बनाया जा सकता है। स्कूल गेम्स फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम इस माह की 14 और 15 तारीख को विकाराबाद में मुनक़िदा रियासती सतह के स्विमिंग मुकाबला जात में गर्ल्स सेक्शन में विनम्रा ने 200 मीटर फ्री स्टाइल रेस में इनफरादी तौर पर तमगा हासिल किया और 400 मीटर फ्री स्टाइल के सेक्शन में कांसी का तमगा हासिल किया। बॉयज़ के सेक्शन में मोहन दुर्गा ने 200 मीटर फ्री स्टाइल, 400 मीटर के सेक्शन में दूसरा कांसी का तमगा हासिल किया और इसके अलावा अखिल जारी 50 मीटर सेंटर फ्लाई सेक्शन में कांसी का तमगा हासिल किया और स्पोर्ट्स अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम तलबा को तमगा हवाले करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में DYSO पवन कुमार, मुकामी स्विमिंग पूल कोच फारूक के अलावा दीगर ने शिरकत की। आलमी यौम सहाफ़त के मौके पर बांसवाड़ा में फ्रेंडली क्रिकेट मैच का किया गया इनेकाद। जिला कामरेडी बांसवाड़ा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के इहाते में यौम कौमी अखबार के मौके पर एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर बांसवाड़े में सहाफ़ियों और पुलिस अमले ने दोस्ताना क्रिकेट मैच का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम को दोस्ताना माहौल में सहाफ़ियों और पुलिस एहलकारों के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के मकसद के तहत इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मुकामी SI श्रीधर ने कहा कि सहाफ़ियों और महकमे पुलिस के दरमियान ताउन नहायत ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि मुतासरा में अमन व सलामती को बरकरार रखने और लोगों को मालूमात की फराहमी में दोनों बरादरियों का किरदार काफ़ी अहमियत रखता है और इस तरह के प्रोग्राम से दोनों बरादरियों के दरमियान बाहमी एहतियात को
फ़रोग़ दिया जा सकता है। इससे मुतासरा के लिए मज़ीद बेहतरीन खिदमात फराहम की जा सकती है। इन्होंने मज़ीद कहा कि क्रिकेट मैच में हार जीत अहम नहीं है, बल्कि असल मकसद दोस्ती और ताउन को फ़रोग़ देने का इजहार किया। इस मौके पर सहाफ़ियों ने एसआई श्रीधर और पुलिस अहलकारों को इजहार तशक्कुर किया और मुस्तक़बिल में भी इस तरह के प्रोग्राम का इनकाद अमल में लाने का इन्होंने इजहार किया। నేషనల్ ప్రెస్ డే సందర్భంగా అందరికీ ప్రెస్ మిత్రులందరికీ శుభాకాంక్షలు. పోలీస్ అండ్ ప్రెస్ క్రికెట్ మ్యాచ్ ఏర్పాటు చేసి ఇక్కడ ఆడినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. అందరూ చాలా బాగా ఆడుతున్నారు కాబట్టి అందరికీ శుభాకాంక్షలు. ఇలాంటి మ్యాచెస్ నెక్స్ట్ ఎప్పుడైనా మళ్ళీ ఒక 1 వీక్లో అట్లా అరేంజ్ చేసుకొని మళ్ళీ ఆడాలని నా కోరిక. అందరూ కూడా సహకరించాలని. बालकोंडा में इनकाद अमल में लाए गए मुफ्त आई कैंप को मुस्बित रद्द अमल हासिल हुआ। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर निज़ामाबाद सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल मेडिकल ऑफिसर नवीन की जानिब से मुफ्त आँखों का तिब्बी कैंप मुनाकिद किया गया। इस आई कैंप में मुख्तलिफ मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 150 अफराद के आँखों का टेस्ट करते हुए इन्हें मुफीद सलाह व मशवरा दिया गया। इस मौके पर डॉक्टर ने कहा कि निज़ामाबाद सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल मेडिकल ऑफिसर नवीन की जानिब से बालकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ महालक्ष्मी मंदिर के पास इनेकाद अमल में लाए गए मुफ्त आई कैंप में मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए इस मुफ्त आई तिब्बी कैंप से इस्तिफ़ादा हासिल करने का इजहार किया। मुतवफ़ी बस क्लीनर के अफराद ख़ानदान को कॉलेज इंतज़ामिया की जानिब से सहारा देने का IFTU शहरी सदर मलिक खरजू ने किया मुतालबा। IFTU शहरी सदर D मलिक खरजू ने कहा कि काकतिया कॉलेज में बस क्लीनर के तौर पर काम करने वाले एक कारकुन की बस के नीचे गिर जाने से मौत हो गई है। लिहाजा काकतिया इंतज़ामिया की जानिब से गुज़िश्ता कुछ सालों से बस के क्लीनर के तौर पर काम करने वाले कारकुन किशन को 10 लाख रुपये मुआयना देते हुए मुतवफ़ी के बच्चों को काकतिया स्कूल में इनकी तालीम मुकम्मल होने तक बग़ैर किसी फ़ीस के इनके बच्चों को पढ़ाने का मुतालबा किया और इसके अलावा काकतिया इंतज़ामिया तजुर्बेकार ड्राइवर की खिदमत हासिल करे और काकतिया इंतज़ामिया की जानिब से मुतवफ़ी के अफराद ख़ानदान के साथ इंसाफ फराहम करने के लिए आज IFTU शहरी कमेटी ऑफिस में इनेकाद अमल में लाए गए प्रेस मीट में मुतालबा किया गया। इस प्रोग्राम में IFTU शहरी सेक्रेटरी M शिवा कुमार, नरसिंह राव, मोहन, रमेश के अलावा दीगर ने शिरकत की। అనుభవం లేని డ్రైవర్లను పెట్టుకొని స్కూల్ బస్సులు నడిపేయడం వల్ల అనేక ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి ఈ ప్రమాదానికి స్కూల్ యజమాన్యమే బాధ్యత వహించి అట్టి చనిపోయినటువంటి కుటుంబంలో ఏదైతే జక్కుల కిషన్ ఉన్నాడో అట్టి కుటుంబానికి 15 లక్షల రూపాయల నష్టపరిహారం చెల్లించాలని కాకతీయ యజమాన్యాన్ని మా IFTU నగర కమిటీ డిమాండ్ చేస్తుంది. ఇవ్వాలని కూడా యజమాన్యాన్ని కోరుకుంటుంది. ఇవ్వని పక్షంలో ఖచ్చితంగా మేము ఆందోళనకు దిగుతామని కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. అదేవిధంగా జక్కుల కుటుంబంలోని పిల్లలకు ఉచితంగా విద్యను అందించాలని చెప్పి కూడా కోరుతా ఉన్నాం, తెలియజేస్తున్నాం, డిమాండ్ చేస్తున్నాం. మరి ఇది యజమాన్యం దృష్టిలో పెట్టుకుని వారి కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలా. ज़िला जगत्याल मेटपल्ली शहर में IQ माइंड्स इंस्टीट्यूट में मुख्तलिफ कोर्सेस में ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले तुलबा को डॉक्टर के संजय ने सर्टिफिकेट किया हवाले। ज़िला जगत्याल के मुकाम पर वाक़ मेटपल्ली शहर में IQ माइंड्स इंस्टीट्यूट में मुख्तलिफ कोर्स में ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले तुलबा को धनिया वदालू डॉक्टर के संजय के हाथों सर्टिफिकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर MLA डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि तालीम हर एक की ज़िंदगी को आला सतह पर ले जाने वाली ताकत है, इसलिए हर एक तालिबे इल्म अपनी हालतों को मज़ीद निखारते हुए आला अहदाफ हासिल करे और अपने ख़ानदान और माशरे की तरक्की के लिए अहम तरीन किरदार अदा करने की ताकीद की। इन्होंने नौजवानों को मेहनत ही कामयाबी की कुंजी होने के बारे में कहते हुए पैगाम दिया। इस प्रोग्राम में IQ माइंड्स इंस्टीट्यूट CEO यासीन इंस्टीट्यूट का अमले के अलावा तुलबा व तालिबात के साथ साथ इनके वालिदैन ने शिरकत की। మా ఇల్లు తెలుసు కదమ్మా, ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ బస్ స్టాండ్ ముందర హాలిడేస్కి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఉంటుంటే వెళ్ళిపోతుంటే నాకు మ్యాక్సిమం ఎప్పుడైనా పోతే మా సొంత గ్రామం రాఘవపేట అని ఉంటుంది. అది కూడా మేము షిఫ్ట్ అయిపోయినా మొత్తానికి మెట్పల్లికి, రాఘవపేట నుంచి మెట్పల్లి ఉంటుంది. సో హాలిడేస్కి వచ్చినప్పుడు మెట్పల్లికి వస్తుంటే మళ్ళీ వెళ్ళిపోతుంది. ఫస్ట్ టైం నేను ఇబ్రహీంపట్నం మండలికి పోయినా 2002లో. అది
23 ఏళ్ల క్రితం, 22-23 ఏళ్ల క్రితం. మైసూర్ అంటే మీరు చూస్తే తెలుస్తుంది, మైసూర్ ఇస్ వెరీ పాపులర్. అక్కడ డ్యామ్ ఉంటుంది, మైసూర్ సిటీలనే ఆనుకునే ఒక డ్యామ్ ఉంటుంది, కేఆర్ఎస్ డ్యామ్ అంటాము. అక్కడ నీళ్లు పుష్కలము, రైతులు భయంకరమైన ధనవంతులు, అక్కడ కరెంటు పుష్కలంగా ఉంటుండే. అప్పుడు అక్కడ నుంచి నాకు ఇప్పటికి కూడా మెమరీ, ఇట్లా కంప్లీట్ మెమరీ ఉంది నాకు. ఇట్లా వచ్చిన బస్సులో వచ్చిన నేను ఆడ నుంచి వచ్చి మళ్ళీ హైదరాబాద్లో బస్సు మారి మళ్ళీ ఇక్కడ ఇబ్రహీంపట్నం ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ ఆర్మూర్కో ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇబ్రహీంపట్నం కూడా బస్సులో పోయినా. అక్కడ ఎలక్షన్స్ అయితేనే మా నాన్న వాళ్ళందరూ అక్కడే, మా కుటుంబ సభ్యులందరూ అక్కడే ఉన్నారు. అక్కడి నుంచి బయలుదేరినప్పుడేమో మైసూర్లో పచ్చటి పొలాలు, నేను అక్కడే చదువుకున్నా కాబట్టి మంచి కరెంట్ ఉంటుండే, మంచి నీళ్ళు ఉంటుండే, అన్నీ ఉంటుండే. ఎగ్జాక్ట్లీ ఇబ్రహీంపట్నం వచ్చిన. मरकजी वजीर नितिन गडकरी से बीजेपी एलपी कायद एमएलए ए महेश्वर रेड्डी ने की मुलाकात। मरकजी वजीर नितिन गडकरी के साथ मल्काजिगिरी पार्लियामेंट मेंबर इटाला राजेंद्र और मुदल एमएलए रामाराव पटेल ने खुसूसी इजलास में शिरकत की। इस मौके पर बीजेएलपी कायद एमएलए ए महेश्वर रेड्डी ने निर्मल हलके में शायरों की तरक्की के लिए कोशिश करने के लिए महाराष्ट्र में वाक़ नागपुर में मरकजी वजीर बराए रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज नितिन गडकरी से अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए एक याददाश्त हवाले किया। बाद अज़ा मल्काजिगिरी पार्लियामेंट मेंबर इटाला राजेंद्र और मुदल एमएलए रामाराव पटेल के हमरा महाराष्ट्र में वाक़ नागपुर में मरकजी वजीर नितिन गडकरी से इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में ज़िला निर्मल के शायरों की तरक्की के लिए उमूर पर मरकजी वजीर नितिन गडकरी से मशावरत करने के बारे में बताया गया है और इसके अलावा हल्के में दरपेश मसाइल पर भी मरकजी वजीर से तबादला ख्याल करने का इजहार किया। जकरानपल्ली मंडल के तुल्लीकोंडा देहात में ओहदे से सुबुकदोशी की तकारीब में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने की शिरकत। जकरानपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ तुल्लीकोंडा देहात के साकिन जय विनोद ने बाहैसियत स्कूल असिस्टेंट के तौर पर कुलीपैक देहात में वाक़ ज़िला परिषद हाई स्कूल में गुज़िश्ता माह ओहदे से सुबुकदोश हुए। इस प्रोग्राम के तहत आज इनके आबाई मुकाम तुल्लीकोंडा देहात में वाक़ ज़िला परिषद हाई स्कूल में ओहदे से सुबुकदोशी के बाद तैनियत पर मबनी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने शिरकत करते हुए इनकी जानिब से फराहम करदा खिदमात को काबिल सताइश करार दिया। इस प्रोग्राम में PRTO कायदीन मंडल और ज़िला कायदीन व दीगर ने शिरकत की। దైవభక్తి కూడా ఎక్కువ ఇక్కడ స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీ కూడా మరి క్రీడాకారులు కూడా ఆ విధంగానే ఉన్నారు, మేధావులు ఆ విధంగానే ఉన్నారు, చదువుకున్న వాళ్ళు. ఇది ఒక చాలా ప్రోగ్రెసివ్ డెవలప్డ్ విలేజ్ అని నేను భావిస్తా ఉన్నా. ఇది మొదటి నుండి కూడా అంటే సామాజిక స్పృహ ఉన్నటువంటి విలేజ్. మరి అలాంటి గ్రామం నుండి పెద్దలు వినోద్ కుమార్ గారు మరి ఇప్పుడు అంటే మొదలు పొలిటీషియన్, తర్వాత టీచరు, తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ పొలిటికల్గా రాబోతున్నారు. డెఫినెట్గా మేము స్వాగతిస్తున్నాం మీ పొలిటికల్ ఎంట్రీని. కాకపోతే అది అంటే అందరు కూడా గ్రామస్తులతో మాట్లాడిన తర్వాత మనం నిర్ణయం తీసుకుందాం, ఎందుకంటే ఒకళ్ళు తీసుకున్నది కాదు. కాకపోతే ఐ వెల్కమింగ్ యూ టు పాలిటిక్స్. ఎందుకంటే తెలంగాణ ఉద్యమకారులుగా నేను కలిసి మనందరం పనిచేసాం కాబట్టి తప్పకుండా మా వంతు సహకారం ఉంటుందని కోరుకుంటూ మరి ఇవాళ ఇంత చక్కటి కార్యక్రమం మొన్న 31 తారీఖు నాడే రిటైర్ అయింది. కానీ ఆ రోజు నుండి మీరు వస్తేనే కానీ నేను మీరు ఇంకో అంటే మీకు కన్వీనియంట్ టైం మీకు చెప్పండి డేటు, మరి డేట్ చెప్తే నేను డేటు అంటే ఈ ప్రోగ్రాం పెట్టుకుంటానని చెప్పడం జరిగింది వినోద్ కుమార్ గారు. అప్పుడు మొదలేమో 6వ తారీఖు అనుకున్నాం. తర్వాత మాకు జూబ్లీహిల్స్లో అక్కడ ఎలక్షన్లో డ్యూటీ పడ్డది. నేను చెప్పాను వినోద్ గారు నేను రాలేను అంటే, సార్ మీరు ఎప్పుడు టైం ఇస్తే అప్పుడు అని చెప్పి మళ్ళీ హైదరాబాద్కి వచ్చాడు. మేము అక్కడ ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్లో ఉన్నాం. అక్కడికి వచ్చి మరి మీ ఇష్టం అని అంటే మరి ఒక సండే నాడు పెట్టుకోండి ఫిక్స్ట్ ఇస్తున్నాడు అని చెప్పాము. ఇవాళ ఈ ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకొని మరి ఇంత గ్రాండ్గా మనం సక్సెస్ చేసుకుంటాం. వారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు. शहर के रेलवे स्टेशन इलाके में वाक़े हरिता होटल में वुमेंस एंड विंग्स के ज़ेर एहतमाम चिल्ड्रंस डे का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। शहर निज़ामाबाद के रेलवे स्टेशन इलाके में वाक़े हरिता होटल में वुमेंस एंड विंग्स मुनस्सर सेलिब्रेटरी चिल्ड्रंस डे का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर ड्राइंग, क्लीनर, चेस्ट, माई टैलेंट व दीगर मुकाबला जात में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तुलबा को इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले साबिका मेयर नीतू किरण वुमेंस एंड विंग्स के मुतज़म्मिन को मुबारकबाद दी गई।
इस प्रोग्राम में रिटायर्ड इंजीनियरिंग जी हिमंत राव, जगदीश राव व दीगर ने शिरकत की। ఈరోజు జరిగిన చిల్డ్రన్స్ డే కాంపిటీషన్లో డ్రాయింగ్, కలరింగ్, స్పెల్ బీ అండ్ మన మై టాలెంట్ రౌండ్ అన్ని రౌండ్స్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ చిల్డ్రన్స్ డే సందర్భంగా అందరికీ గిఫ్ట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఇంత సక్సెస్ కంప్లీషన్ చేసిన వావ్ గ్రూప్ మెంబర్స్ అందరికీ అండ్ వావ్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ ఫౌండర్ ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ट्रांसफार्मर की चोरी में मुलविस बैन रियासती चोरों को तहवील में लेने का सीपी साई चैतन्य ने किया इजहार। निजामाबाद सीपी दफ्तर में दोपहर के औकात में इनकाद अमल में लाए गए मीडिया इजलास से सीपी साई चैतन्य ने तफसीलात का इंकशाफ किया। इंदलवई के पास बरोज़े हफ्ता सापहर बैन रियासती डकैती के गिरोह को तहवील में लेकर 40 किलो ट्रांसफार्मर कापर काइल्स के तौर पर 5.5 लाख नकद रकम को जब्त किया और कहा कि ये गिरोह गुज़िश्ता एक साल से ज़िले में वाक़ इंदलवई, धरपल्ली, डिचपल्ली, जकरानपल्ली, मिंडोरा, मुपकाल और मोड़ताल, मोपाल के अलावा बोधन टाउन, बोधन एमएलए, नवीपेट और वन्नी मंडलों में ट्रांसफार्मर को तबाह करते हुए इसमें से कापर और काइल्स को चोरी करने के ताल्लुक से वजाहत किया। इन्होंने कहा कि इसमें मुलविस चोरों ने ज़िले में कुल 101 ट्रांसफार्मर को तबाह किया है। ताहम इन पर कुल 44 केस दर्ज किए गए हैं। निजामाबाद एसीपी राजा वेंकट रेड्डी के ज़ेर एहतमाम स्पेशल टीम को मुकर्रर करते हुए बरोज़े हफ्ता को इसमें मुलविस मुलजिमीन को तहवील में लेने का इजहार और इस गिरोह में 5 मेंबर्स के अलावा इनके पास से कापर काइल्स की खरीदी करने वाले 3 अफराद को तहवील में लिया गया। इन मुलजिमीन के पास 40 केजी कापर काइल्स जिनकी मालियत 5.50 लाख नकद रकम को जब्त करने का इजहार किया। లో మనకి ట్రాన్స్ఫార్మర్ అఫెన్సెస్ ఎక్కడైతే విలేజెస్ లో ఎవరు మనుషులు తిరగని ప్లేసెస్లో ట్రాన్స్ఫార్మర్ అఫెన్సెస్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది, కంటిన్యూస్ జరుగుతూ ఉంటే దాని మీద నిఘా పెట్టి కంటిన్యూస్ మానిటరింగ్, ఎవరు కొత్త వ్యక్తులు ఎవరు వస్తున్నారు, ఎట్లా వస్తున్నారు అనే దాని మీద మానిటరింగ్ చేస్తున్న క్రమంలో నిన్న ఈవినింగ్ ఇందల్వాయి పోలీసులు వారు ఇన్ఫర్మేషన్ మీద చెకింగ్ చేస్తుంటే ఒక ముఠాను పట్టుకోవడం జరిగింది. టోటల్ 8 మంది పట్టుకోవడం జరిగింది. 2 బైక్స్ కూడా పట్టుకోవడం జరిగింది. వీళ్ళ దగ్గర ఇప్పుడు చూపించినట్టు 40 కేజీల వరకు కాపర్ కాయిల్స్, మళ్ళీ రీసెంట్గా దొంగతనం అయిన ట్రాన్స్ఫార్మర్ కాపర్ కాయిల్స్ డిస్పోజ్ ఆఫ్ చేయడానికి వెళ్తున్నారని తెలిసి ఇన్ఫర్మేషన్తో పట్టుకోవడంలో వాళ్ళ దగ్గర 40 కేజీల కాపర్ కాయిల్స్ ఇంకా 5 లక్షల క్యాష్ వరకు జప్తు చేయడం జరిగింది. వీళ్ళ మోడల్స్ ఏంటి అంటే ఊరు చివర్లలో ఎవరైతే జనాలు తిరగని ప్లేసెస్లో ఉంటే ఐడెంటిఫై చేసుకుని అక్కడికి వెళ్ళి రాత్రిపూట సాయంత్రం కల్లా అక్కడికి వెళ్ళి చీకట్లో దాక్కొని రాత్రి వెళ్ళి ఆ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కింద పడేసి దాంట్లో ఉన్న కాపర్ కాయిల్ దొంగతనం చేసుకుంటూ వెళ్ళి డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో వీళ్ళకి రిసీవర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి అమ్మడం జరుగుతూ ఉంటుంది. शहर निजामाबाद में 23वीं महासभा को PDSU शहरी कमेटी के ज़ेर एहतमाम कोटा गली में वाक़े भवन में किया गया इनेकाद। प्रगतिशीला प्रजा स्वाम्य विद्यार्थी संगम PDSU शहर निजामाबाद के 23वीं महासभा को शहरी कमेटी के ज़ेर एहतमाम कोटा गली में वाक़े GS प्रसाद भवन में इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर PDSU से मुतालिक झंडा लहराया गया। इस प्रोग्राम को मद्देनज़र मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले मुखर्रर जन्ना विज्ञाना वेदिका रियासती सदर N रामाराव ने कहा कि हर एक तालिब इल्म साइंस नुक्ते नज़र को अपनाना चाहिए। मुल्क में ज़ात पात और फ़िरका वाराना नफ़रत उरूज पर है। वह हुक्मरान ही अवाम को तकसीम करते हुए हुक्मरानी कर रहे हैं। ज़ात पात और मजहबी मुनाफरत से पाक एक नए माशरे की तामीर के लिए काम करने की ज़िम्मेदारी तरक्की पसंद तुलबा कायद होने का इजहार किया। बाद अज़ां नए एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान को बिला मुकाबला इंतखाब अमल में लाया गया। इस मौके पर शहरी सदर के तौर पर नसीर, जनरल सेक्रेटरी के तौर पर विनोद, नायब सदर की हैसियत नगेश और स्टेट सेक्रेटरी के तौर पर सरोजन व दीगर का इंतखाब किया गया। जकरानपल्ली देहात में अरगुल सोसाइटी चेयरमैन आरमूर गंगा रेड्डी की घर बरानी तकरीब में रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने की शिरकत।
जकरान पल्ली देहात में अरगुल सोसाइटी चेयरमैन आरमूर गंगा रेड्डी की घरबरानी तकारीब में रूरल रुकने असम्बली निजामाबाद डॉक्टर भूपत रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी के साथ कांग्रेस पार्टी के कारकुनान के अलावा कायदीन और अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। बालकोंडा एमएलए प्रशांत रेड्डी ने मिंडोरा मंडल के लिए मंजूर किए गए कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम के फाइल्स पर किया दस्तखत। बालकोंडा एमएलए वेमला प्रशांत रेड्डी ने मिंडोरा मंडल में मंजूरी अमल में लाने से मुतालिक 35 कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक के फाइल्स पर दस्तखत किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से मुतारफ करदा कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के तहत मिंडोरा मंडल के लिए कुल 35 दरख्वास्तों की मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया। अख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। ट्रांसफार्मर की चोरी में मुलविस बैन रियासती सारिकीन को पुलिस ने लिया तहवील में। निजामाबाद सीपी दफ्तर में मीडिया इजलास से सीपी सईद चैतन्या ने तफसीलात का किया इंकशाफ। मरकजी वजीर नितिन गडकरी से बीजेपी एलपी कायद एमएलए ए महेश्वर रेड्डी ने की मुलाकात। खुसूसी मुलाकात में इटाला मुधोल एमएलए रामाराव पटेल ने की शिरकत। बालकोंडा एमएलए प्रशांत रेड्डी ने मिंडोरा के लिए मंजूर किए गए 35 कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम से मुतालिक फाइल्स पर किया दस्तखत। जकरान पल्ली मंडल के तुरली देहात में ओहदे से सुबुकदोशी की तकरीब में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने की शिरकत। आलमी यौम सहाफ़त के मौके पर एमपीजे ऑफिस पर तकरीब का एहतमाम। शहर से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों को पेश की गई तहनीत। आज के लिए इतना ही, दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।